Hello 7th class students. This is your 18th chapter, last chapter of your NCERT science book. The name of the chapter is Wastewater Story. Wastewater story is the story of sewage. Sewage means wastewater coming from our homes, offices, industries, laundries, and rainwater also. Let's start the chapter. All of us use water in our homes and make it dirty, right? You are using water for cleaning, cooking food, for bathing, for brushing, for washing, and you make this water dirty. Dirty, are you surprised? Nothing to surprise here. The water which is rich in lather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilet, laundries, इन सभी sources से जाता है आपके drains में. That is dirty water. This is also called wastewater. So, what is the definition of wastewater? क्या बनी बेटा? Define wastewater आपको एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखोगे? The water which goes down the drains from our sinks, showers, toilets, laundries, industries भी आप लिख सकते हो. That water is known as wastewater. Because हमने उसको use कर लिया, अब उसका कोई use नहीं हो रहा. That is why it is called wastewater. Now this used water should not be wasted. अब ये पानी और वेस्ट ना हो, इसको हम यूज कर लें प्रॉपर. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स. इसके अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको रिमूव करके हम इसको साफ कर सकते हैं. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपेंस टू इट? क्या कभी आप बच्चों ने सोचा है कि ये वेस्ट वाटर कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? तो आइए इससे पहले कि हम ये जाने, लेट्स डू 18.1 वाटर आर लाइफलाइन. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फॉरेस्ट आर लाइफलाइन, उसी तरह से वाटर भी हमारी लाइफलाइन है. वी ऑल नो दैट विदाउट वाटर नथिंग, प्लांट्स as well as animals, they live. So clean water is a basic need of human being. Okay, this is our basic need. Without water we can't live. Let us make a mind map of the many uses of clean water. What do you mean by mind map? Mind map is just type of flow chart जहां हम कोई भी knowledge है उसको gain कर सकते हैं easy ways. We have given one example of the use of clean water. You can add many more. One example is given for you that clean water put to use, that is for drinking, है ना. बाकी के 3 आप लिख सकते हो for cooking, washing, cleaning, bathing, okay, for generating electricity. Write all these in the circular boxes. Next is clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. So students, अगर आप लोगों को पानी मिला है, this is very fortunate. अच्छी बात है. It's good for all. But unfortunately ये भी सच है कि near about more than 1 billion people ऐसे हैं वर्ल्ड में जो access नहीं कर सकते drinking water. They drink dirty water and water related diseases and even deaths happened. People, even children, they have to walk for several kilometers to collect clean water. You have read this in chapter number 16. Is it not a serious matter for human dignity? Yes, it is. You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity, means shortage of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. ये सभी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें वाटर की शॉर्टेज, वाटर की स्कैसिटी जो है वो बढ़ रही है. रियलाइजिंग द अर्जेंसी, इस अर्जेंसी को
रियलाइज करते हुए, जानते हुए सिचुएशन को, on the World Water Day on 22nd March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. Underline this. एक डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं बेटा? 10 ईयर्स. 10 ईयर्स मेक अ डिकेड. सो 2005 से लेके 2015 तक का जो पीरियड है 10 ईयर्स का डिकेड का, दैट इज प्रोक्लेम्ड एज द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ. अब बहुत सारे एफर्ट्स किए गए इस एम को पूरा करने के लिए. एम क्या था? टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. यानी 1 बिलियन लोग अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमें तो उस नंबर को हाफ करना है. यानी मोर वाटर जो है वो अवेलेबल हो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पॉपुलेशन के लिए. नाउ देयर हैज बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस. फिर भी कुछ प्रोग्रेस हमने की इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू अचीव. लेकिन अभी तक हमें बहुत कुछ ऐसा है टारगेट जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमें अचीव करना है. सभी को पानी नहीं मिल पाया. क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड. बेटा पानी को साफ करना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉल्यूटेंट्स रिमूव किए जाते हैं. वाटर बॉडी यानी किसी रिवर में ऐड हो रहा है पानी, उससे पहले साफ करना जरूरी है. दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. और ये जो वेस्ट वाटर को हम साफ करने की बात कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. सो व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. It takes place in several stages. It takes place in several stages. Now what is sewage? इससे पहले कि हम several stages को पढ़ें, पहले हमें ये पता होना चाहिए what is sewage. Sewage होता क्या है? Student, sewage is a waste water released by homes, industries, hospital, offices and other users. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो भी वेस्ट वाटर हम इन सोर्सेज से निकलता है दैट इज नोन एज सीवेज. इसमें रेन वाटर भी आ जाता है जो आपकी स्ट्रीट्स में, जो आपके रूफ टॉप से निकलता है ड्यूरिंग अ हैवी रेनफॉल. Then the water that washes off roads and rooftops carries harmful substances in it. So sewage is a liquid waste. What is sewage? Sewage is a liquid waste having pollutants and chemicals in it. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. Now activity 18.2, locate an open drain near your home. आपने अपने घर के पास locate करना है. क्या लोकेट करना है आपने? क्या देखना है? ओपन ड्रेन. चाहे वो रोड साइड में हो, स्कूल में हो. इंस्पेक्ट वाटरिंग फ्लोइंग थ्रू इट. उस पानी को देखो ध्यान से, उसका कलर रिकॉर्ड कीजिए. ऑर्डर यानी स्मेल देखिए किस टाइप की आती है. एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल. 18.1. देखो बेटा साइंस तो तभी आती है जब आप ये एक्टिविटीज करते हो, ऑब्जर्वेशंस को लिखते हो. We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities. अब और भी इसकी जो डेफिनेशन है, अगर आप उसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो सीवेज को, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. ये तो अब तक आपने देख लिया कि इसमें सॉलिड इम्प्यूरिटीज भी हैं, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल इम्प्यूरिटीज भी हैं, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट की तरह, एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स है, यूरिया है, ये इम्प्यूरिटीज भी हैं. न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें, सैप्रोफाइट्स भी हैं एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं. नाउ अलग अलग आप देखो समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. व्हाट आर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज? गिव एग्जांपल्स. तो ह्यूमन फीसेस जो वेस्ट है ह्यूमन का, सॉलिड वेस्ट, एनिमल वेस्ट. इसके अलावा जो हमारा यूरिन है वो भी इसके अंडर आता है ना. तो ये टेबल आपको बना के दिया है जिसमें आपने सीरियल नंबर के साथ साथ टाइप ऑफ सीवेज भी लिखना है, किस तरह का सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर. देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से आया है वो, कंटेमिनेंट्स उसके अंदर क्या क्या है, एनी अदर रिमार्क ऑब्जर्वेशन है तो वो भी आपने लिखनी है. ये आपका आ जाएगा कंटेमिनेंट सर्वे टेबल में.
अब आइए देखिए, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज तो आपने पढ़ ली, ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, इसके साथ ऑयल, यूरिया जो हमारे यूरिन में होता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं हमारे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरियाज की बात करें तो विब्रियो कॉलरा जो कि हमें कॉलरा डिजीज कॉज करता है, और साल्मोनेला पैराटाइफी जो हमें टाइफाइड कॉज करता है। ये वाले बैक्टीरियाज भी होते हैं इस डर्टी वाटर में, सीवेज में। अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डाइसेंट्री, लूज मोशंस कॉज करते हैं जो। नाउ 18.3 में बेटा हम पढ़ेंगे वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। ठीक है, पानी हमको हमेशा फ्रेश रखता है। इसकी जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे वेस्ट वाटर। आप ये देख सकते हो हर घर में ऐसा है। ठीक है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो ना, जहाँ फिटिंग हो रही हो पाइप्स की, तो वहां आप देखिएगा तो आपको वहां जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, प्लम्बर जो काम करता है वहां पे, वो आपको बताएगा कि किस तरह से एक पाइप जो है वो हमारे घर में वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर के लिए आती है, और एक पाइप उसके साथ एडजेसेंट होती है जो वेस्ट वाटर को घर से बाहर ले जाती है। जहां भी आपका जो मेथड है सीवेज का को डिस्पोज ऑफ करने का, imagine that we could see through the ground. We would see a network of big and small pipes. Imagine कीजिए, अगर आप ग्राउंड के नीचे देख सकते हो तो आप बिग और स्मॉल पाइप्स का नेटवर्क देखोगे वहां पे, जिनको हम सीवर्स बोलते हैं, जो कि सीवरेज बनाते हैं। It is like a transport system and carries sewage from point of being produced to the point of disposal. एक पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह, जहां से ये पानी निकल रहा है, पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड बोलेंगे उसको, और कहाँ तक ये जाता है उसको पॉइंट ऑफ डिस्पोजल बोलेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है। तो मैन होल्स भी बने हुए हैं, दे आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर और 60 मीटर के डिस्टेंस पे सीवरेज में, जहां पर जंक्शन है, मान लो 2 पॉइंट सीवर्स के मिल रहे हैं, डिफरेंट पाइप्स के, स्मॉल और लार्ज पाइप्स के, जिससे सीवेज वाटर आ रहा है। एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पे उसकी जो डायरेक्शन है सीवर्स की वो चेंज हो रही है, तो वहां पर मैन होल्स लगे होते हैं, जिससे हम ठीक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर आती है तो। नो एक्टिविटी 18.3 देखिए बेटा, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग एंड डू द फॉलोइंग। आपने एक लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का। आप अपनी स्ट्रीट में सर्वे के लिए जा सकते हो। नंबर ऑफ मैन होल्स आपको मिलेंगे, अगर पॉसिबल है तो एक को आप ओपन करो, ड्रेन को रिकॉर्ड करो कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां मिलते हैं। इन केस यू डो नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि जो सीवेज है वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ होता है आपकी लोकेलिटी में। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर की किस तरह से ट्रीटमेंट होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प you understand the process that take place at the wastewater treatment plant. आपने ये एक्टिविटी करनी है, आपको ये पता चल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह से पानी को ट्रीट किया जाता है। नो एक्टिविटी 18.4 में देखिए, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट ईच स्टेज। अपनी पूरे ग्रुप में आपने अपने आप को बांट लेना है, ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में 3-4 ग्रुप्स बना लो। फिर आपने हर स्टेज पर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। एक बड़ा सा आपने ग्लास जार लेना है, उसको 3/4 आपने यानी 3/4 हिस्सा उसका आपने पानी के साथ भर देना है। नो एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर। डर्टी ऑर्गेनिक मैटर आपने 75% आपने उसको पानी से भर दिया। अब आपने उसमें डर्टी ऑर्गेनिक मैटर डालना है, जैसे आपने ग्रास पीसेस डाल दिए, है ना, घास के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, ऑरेंज पील्स डाल दी, संतरे के छिलके, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, कुछ ड्रॉप्स आपने इंक और एनी कलर के ऐड कर दिए बीच में। अब आप उसको शेक करोगे अच्छे से, ठीक है, कैप लगा के जार की, और उसको कुछ 2 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए, सॉरी, आप सनलाइट में रख दोगे।
आफ्टर 2 days फिर से आपने शेक करना है मिक्सचर को और उसका सैंपल आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जिसको आपने सैंपल 1 नाम दे देना है और देखना है उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है। ऑब्जर्वेशन आपने नोट करते रहना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने एक एरेटर यूज करना है एक्वेरियम से। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप मिक्सर और ग्राइंडर भी यूज कर सकते हो जो आपके घर में है। वहां पर आपने मैकेनिकल स्टिरर को मिक्सर को यूज करके अच्छे सेवरल टाइम्स उस सॉल्यूशन को मिक्स करना है। ठीक है। नेक्स्ट डे एक तो हमने सैंपल कुछ तो हमने टेस्ट ट्यूब 1 में निकाल लिया ना। नेक्स्ट डे आपने ये एरेटर वाला सैंपल टेस्ट ट्यूब 2 में निकाल देना है और उसको सैंपल 2 नाम दे देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। फिल्टर पेपर का आपने एक कोन सा बना लेना है। वेट द पेपर विथ टैप वाटर, गीला कर लो उसको। देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल में डाल दो आप कोन को। अब आपने क्या करना है, प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। ये सब डाल के आपने पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड को डाल देना उसके अंदर और फिल्टर कर लेना है बीकर्स में। नाउ डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। इतना ज्यादा नहीं डालना कि फिल्टर से बाहर ही निकल आए। इफ द फिल्टर लिक्विड इज नॉट क्लियर, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। अगर आपको क्लियर वाटर नहीं मिल रहा तो एक दो बार और उसको फिल्टर करो पानी को। देन पोर अ सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इनटू द थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब इसको लिखना है आपने सैंपल 3। आप क्या देखोगे बेटा, ये देखो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पिक्चर से भी दिखा रहे हैं 18.2 फिगर से। आप क्या देखोगे, पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है। एड अ स्मॉल पीस ऑफ अ क्लोरीन टैबलेट। अब थोड़ा सा आपने सैंपल, तीन तो आपको सैंपल हमने 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल दिए। स्टार्टिंग में डाला हमने, फिर उसको एरेटेड मिक्सर करके डाला, फिर थर्ड में हमने उसमें फिल्टर करके उसका जो फिल्टर निकला पानी वो वाला डाला। अब फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमने फिर से डालना है सैंपल और उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल देनी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसको वाटर को साफ करना है बिल्कुल और उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्लोरीनेटेड लिख देना है, सैंपल 4। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। डू नॉट टेस्ट, उसको टेस्ट नहीं करना। चारों सैंपल्स देखो, स्मेल करो। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसने प्रॉपरली किया है, सुना है, तो उसको आंसर्स बड़े आराम से, उसके जो आंसर्स है ना बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्वेश्चन ए में पूछा है, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। एरेशन के बाद आपने क्या चेंजेस फील किए। देन डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर, क्या एरेशन से जो स्मेल थी वो बदल गई। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर से क्या क्या रिमूव हुआ। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या कलर चेंज हो गया क्लोरीन से। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन की कोई स्मेल भी आई। वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, क्या ये वेस्ट वाटर की स्मेल से भी गंदी थी या अच्छी थी, बेटर थी। लिखना है आपने। ओके। 18.4 में देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Now, treatment of wastewater involves physical, chemical and biological processes. इतने सारे processes होते हैं, physical भी होता है, chemical process भी होता है इसमें और biological process भी होता है, which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. तो आइए जरा देखते हैं हम किस तरह से ये process होता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ बार स्क्रीन्स। ये आपको फिगर में दिख रहा है, बार स्क्रीन से वेस्ट वाटर को पास किया जाता है, अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए, फ्री फ्लो। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिंस, वो तो रिमूव हो जाते हैं इस स्टेप में। ये बार स्क्रीन आपको दिख रही है ना। नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। एक ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक से पानी फ्लो करता है। नेक्स्ट स्टेप में स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज, स्पीड को कम कर दिया जाता है टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, है ना, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब ये तो रिमूव हो गए पेबल्स। अब थर्ड स्टेप में द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक में, उसको स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल की तरफ स्लोप में पानी को फ्लो किया जाता है। Solids like feces settle at the bottom and are removed
विद अ स्क्रैपर, फीसिस जो है उसके जो वेस्ट है ह्यूमन वेस्ट, वो विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर, जिसको हम स्लज कहते हैं, अलग कर लिया जाता है। अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल, ग्रीस। इसके लिए स्किमर को यूज किया जाता है जो फ्लोटेबल सॉलिड्स को अलग कर देता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। इस पानी को जिसमें से स्लज अलग हो गया, यानी एनिमल जो फीसिस थे, ह्यूमन फीसिस थे, वो अलग हो गए, आपका जो फ्लोटेबल सॉलिड से ऑयल ग्रीस अलग हो गया। अब इस क्लियर्ड वाटर को हम बोलेंगे क्लैरिफाइड वाटर। तो डिफाइन क्लैरिफाइड वाटर आपको क्लियर हो गया। अब स्लज को क्या करना है बच्चे? स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक, जहां इसको डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। The biogas produced in the process can be used as fuel. Very good. इस स्लज से जो बायोगैस निकलेगी, मीथेन गैस, उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और इसके साथ साथ उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। तो स्लज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फोर्थ स्टेप में देखिए बेटा क्या होगा, एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। जो एयर है उसको पंप किया जाता है क्लैरिफाइड वाटर में ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं? उनका नाम क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, फूड वेस्ट को, सोप को, अदर अनवांटेड मैटर को, ठीक है, जो अब तक क्लैरिफाइड में वाटर में अगर प्रेजेंट है, तो एरोबिक बैक्टीरिया एयर की पंपिंग के थ्रू वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं और इस सारे वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये एरेटर की आपको पिक्चर दिखाई गई है जहां से एयर को पंप किया जा रहा है। Now next देखिए, after several hours the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top. The activated sludge जो है आपका is about 97% water उसमें अभी भी है. The water is removed by sand, drying beds और machines. जो dried sludge है आपके पास, that is used as manure, very fertile, returning organic matter and nutrients to the soil को वापस दे दिए हमने. Now the treated water has a very low level of organic material and suspended matter. Now it is discharged into sea, a river or into ground. Nature cleans it up by further. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine डालते हैं हम, ozone डालते हैं before releasing it into the distribution system. Now become an active citizen. आपने एक active citizen की तरह behave करना है, नहीं हो तो बन जाओ। क्या करना है? वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं तो ये नेचुरली हम लोग वेस्ट जो है वो जनरेट तो करते हैं, बट वी कैन लिमिट द। नाउ पहले, इससे पहले कि नेक्स्ट पढ़े हम लाइन, बूझो का क्वेश्चन देख लें। द वाटर इन अ रिवर इज क्लीन्ड नेचुरली बाय द प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोस अडॉप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम क्लोरीन को यूज कर रहे थे और रिवर में भी हम उसकी टैबलेट्स डाल रहे हैं, उससे क्लियर कर रहे हैं, तब रिवर्स में पानी डाल रहे हैं। डिड यू नो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज, हमें लगाने चाहिए सीवेज पॉन्ड्स के पास। क्या करते हैं ये यूकेलिप्टस ट्रीज? These trees absorb all surplus wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. तो भाई लगाओ सभी यूकेलिप्टस ट्रीज सीवेज पॉन्ड्स के पास जहां सीवेज वाटर है। Now which type of waste and quantity of waste produced? यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स वेस्ट, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑफन अगर हम इसको रोक सकते हैं ना, ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। कई बार हम ऐसी स्मेल का सामना करना पड़ जाता है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग, है ना, बहुत गंदा लगता है हमें ओपन ड्रेन्स को देखकर। द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन में, और भी सिचुएशन खराब हो जाती है व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब इन ड्रेन में से पानी भर भर के ना बाहर निकलता है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, है ना। मोस्ट अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल हो जाती है। मक्खियां, मच्छर, इंसेक्ट्स ब्रीड होना शुरू हो जाते हैं। यू कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन किसको बोलते हैं? जो अवेयर हो,
एंड जानता हो अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत को अप्रोच करे, इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड, उनको कहे कि ये ओपन ड्रेन्स जितने भी हैं इन पे कवरिंग होनी चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए. इफ द सीवेज ऑफ द एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ. अगर आपके पड़ोस में भी कहीं आप देख लेते हो ना कि गंदा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये सबकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, रिक्वेस्ट कर सकते हो उसको ठीक करने के लिए. तो पहली कहती है डोंट ऐड टू द लोड ऑफ WWTP, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर ज्यादा लोड मत डालिए. पहेली वंडर्स हाउ, वो कहती किस तरह से. तो आइए जरा देखते हैं बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस भी हैं हमारे पास कि हम अच्छी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस से कैसे हेल्प कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका है मिनिमाइज एलिमिनेट वेस्ट को करने का, पॉल्यूटेंट्स को करने का. हम देखते हैं कि हम ड्रेन में किस टाइप का पानी जो है, सीवेज जो है वो जाने दे रहे हैं. सबसे पहले कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द ड्रेन. ये तो हम कर सकते हैं ना बेटा. आप अपनी मदर्स को कहिए जो किचन में काम करते हैं, या आप अगर खुद काम करते हो तो क्या करना है हमने, सबसे पहले कुकिंग ऑयल फैट्स को हमने ड्रेन में नहीं जाने देना, क्योंकि फैट्स और ऑयल्स जो है ना ये बहुत हार्मफुल है. दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, वो ब्लॉक पाइप्स को हार्ड बना देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. In an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. पानी को फिल्टर करते समय भी ये फैट्स हमें बहुत हर्डल्स क्रिएट करते हैं, हमें डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, है ना, इफेक्टिव वर्किंग होने नहीं देते. थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन में फेंकने चाहिए आपको, ये ध्यान रखोगे फर्स्ट स्टेप में. देन सेकंड में हम देखेंगे केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब्स को मार सकते हैं ये पानी के अंदर जो है. सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, वो भी नहीं हमने फेंकने हैं केमिकल्स. नो यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल है ना, इनको डस्टबिन में डालना चाहिए. और इस वेस्ट को हमने ड्रेन में नहीं डालना, क्योंकि वो चोकिंग कर सकते हैं, यानी ब्लॉकेज कर सकते हैं ड्रेन्स की, रास्ता रोक सकते हैं वेस्ट वाटर का. दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, डिग्रेडेशन प्रोसेस को रोकते हैं ये. अब ये देखिए गलत तरीका है, हम लोग ऑयल फैट सब कुछ बीच में डाल रहे हैं, जबकि साफ तरीका ये है कि हम उसे डस्टबिन में डालें, है ना. तो हर चीज को सिंक में नहीं फेंकना चाहिए. In the year 2016, बेटा, the government of India has initiated a new mission known as स्वच्छ भारत अभियान चलाया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, जिसके अंडर बहुत सारी ड्राइव्स चली थी. कैसी प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड. खुले में भाई हम लोग टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, उसके लिए हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसी ड्राइव चली थी. वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, अब इस टॉयलेट के बारे में आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो सुन लो. एक ऐसा डिजाइन टॉयलेट का जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी अर्थवॉर्म से. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पाया गया कि जो लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट. द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक. द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, जो कि मिट्टी के लिए बहुत न्यूट्रिशन देते हैं, मैनर बन जाते हैं. 18.6 में हम पढ़ेंगे बेटा सैनिटेशन एंड डिजीज. नाउ पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. अगर अच्छी सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर गंदा है हमारा, तो लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस पैदा होने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. Let us look at our country. अपनी कंट्री की तरफ देखें. A vast number of our people are still without sewerage facilities, के बिना हैं. Where do they relieve themselves? A very large fraction of our people defecates in the open में defecate करते हैं, on dry river beds में, railway tracks में, है ना, near fields and many, जहाँ जगह मिल जाए बस वहीं, directly in, कई बार तो directly in the water. Very shameful. Untreated human excreta जो है ये is a health hazard.
हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये. इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो. बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड. क्योंकि सीपेज भी गंदे पानी की होगी तो ग्राउंड वाटर भी गंदा हो जाएगा. ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स में गंदा पानी आएगा, जैसे आपने चैप्टर 16 में पढ़ा. Thus it becomes the most common route for water-borne diseases. They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. ये सारी की सारी बीमारियां गंदे पानी से होती हैं. Now Bujo wants to know how sewage is disposed of in an aeroplane. अरे सीवेज का क्वेश्चन देखिए क्या बना रहा है ये बूझो कि एरोप्लेन में कैसे डिस्पोज ऑफ होता है. अब इसका आंसर आप बच्चे दोगे. 18.7 में देखिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. नाउ टू इम्प्रूव सैनिटेशन, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बनाए गए, है ना. एग्जाम्पल्स हैं सेप्टिक टैंक्स बनाए गए, केमिकल टॉयलेट्स बनाए गए, कंपोस्ट पिट बनाए गए, सेप्टिक टैंक्स बनाए गए, है ना, जहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता. हॉस्पिटल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस जहां पे इकट्ठे हैं उनके लिए. सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी भी दी उन्होंने. दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग की जरूरत नहीं थी उन्हें. एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट में सीधा चला जाता था. द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ 18.8 में पढ़ेंगे सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस में किस तरह से हुई. इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली. मेले लगे रहते हैं हिंदुस्तान में. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम. इन द सेम वे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, वेरी बिजी प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट देम. डेली का आना जाना है लोगों का. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड ओवर हियर, है ना. इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज क्या होगा. ये इसको छोटा कर ले. अदरवाइज epidemics could break out. बीमारियां होंगी. The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. कोई रूल नहीं है कि फॉलो करें रूल्स को. However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. हम भी ध्यान रखें, औरों को भी कहें कि ध्यान रखिए. We should not scatter litter anywhere. इधर उधर कुछ नहीं फेंकना चाहिए. If there is no dustbin in sight, नहीं दिखाई दे रहा तो अपने लिटर को, वेस्ट को अपने घर ले जाइए और वहां पर डस्टबिन में डालिए. कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा. We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. So you must realize your responsibility. Realize कीजिए अपनी responsibility को. इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट, क्योंकि हम ही बीमारियों से बचेंगे, हमें ही प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम फॉलो करते हैं, रियलाइज करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, अच्छी अगर हम ये प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे सैनिटेशन की तो शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ. ये हमारा वे ऑफ लाइफ होना चाहिए. ठीक है, जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए. हमें अच्छी आदतें सीखनी है. एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस. बना सकता है आपका हर एक बंदे का जो स्टेप है बहुत ज्यादा वो इफेक्ट लाने वाला है. इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म. इस चैप्टर को सुनने के बाद ना आप अपनी मम्मी को, बड़ी दीदी को, घर में फैमिली मेंबर्स को, छोटे बच्चों को, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को एडवाइस करो. ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सोचिए, अच्छी बातें सोचिए. ऐसा मत सोचिए कि हमारे अकेले करने से क्या हो जाएगा. हर इंसान करेगा तो अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा. अगर हर इंसान दूसरे को देखता रहेगा तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा. अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर. बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं अगर हम लोग एक साथ पॉजिटिव सोच के साथ काम करें. देयर इज ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन. हमारे कलेक्टिव एक्शन में मिलजुल कर काम करने में बहुत बड़ी ताकत है. Mahatma Gandhi said, no one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action. किसी को किसी की वेट करने की, इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आप एक अच्छी आदत को, इंसानियत को अडॉप्ट कर सकते हो और अपना जो अच्छा काम है, एक्शन है, उसको स्टार्ट कर सकते हो. अवेयरनेस फैला सकते हो. कीवर्ड्स इसके देखिए, एरेशन, कंटामिनेंट,
सीवरेज, एरोबिक बैक्टीरिया, सैनिटेशन, स्लज, एनारोबिक बैक्टीरिया, सीवेज, वेस्ट वाटर, बायोगैस, स्वीवर, सब की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है। फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो की आपके सामने है। व्हाट यू हैव लर्नड, गो थ्रू दीज पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फुल एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।